نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک، آج کی گفتگو بہت منفرد، ونس اگین بہت حساس اور بہت نازک۔ اس ٹاپک پر نہ ہونے کے برابر لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ دین اسلام کو قبول کرنے والے ابتدائی مسلمان یا شخصیات کے نام، ان کی لسٹ اور ان کی فہرست، جو کہ تقریباً 1400 سال سے کم و بیش تمام کتب سیرت، کتب تاریخ اور علماء اور فقہاء کی گفتگو میں مل رہی ہے۔ ان ابتدائی مسلمانوں کی جو فہرست، جو لسٹ، جو نمبرنگ کی گئی ہے، میرا اس سے بصد احترام اختلاف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، میرے لیے لمحات فکریہ بھی ہیں، اور میں آج اس گفتگو کے ذریعے اپنے قابل احترام علماء اور فقہاء کے سامنے چند گزارشات سوالات کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے پہلے اس لسٹ کو دیکھتے ہیں ابتدائی مسلمانوں کی، جو کم و بیش 1400 سال سے تقریباً تمام کتب سیرت و تاریخ اور علماء و فقہاء کی گفتگو میں ملتی ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ ابتدائی 4 مسلمان ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، منہ بولے بیٹے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، چچا زاد بھائی مولائے کائنات جناب حضرت علی علیہ السلام، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 ناموں پر اجماع ہے، اور یہ نام تو کثرت کے ساتھ گفتگو میں، نصاب کی کتب میں، سیرت اور تاریخ کی کتب میں عام ملتے ہیں، اور عوام الناس کی زبان پر بھی عام ہیں۔ اچھا جی، یہ جو 4 نام ہیں، ان کو اولین مسلمان جو قرار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے دلائل کیا لیے گئے ہیں؟ نیچرل دلائل ہیں، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غار حرا کی جو وحی ہے، اس کا ذکر اپنی زوجہ سے کیا، زوجہ مسلمان ہو گئی۔ گھر میں زید بن حارثہ موجود تھے، مسلمان ہو گئے۔ جناب علی چچا زاد بھائی تھے، گھر میں رہتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش تھے، مسلمان ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق بہترین دوست تھے، رازدان تھے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہی دلائل ہیں، یہی بنیادیں ہیں کہ یہ 4 لوگ ابتدائی مسلمان ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھیے، ان کے بعد جتنی بھی کتب تاریخ اور سیرت کا میں نے مطالعہ کیا ہے، میرے پاس الحمدللہ جید تاریخ کی کتب اور سیرت کی کتب موجود ہے، تمام مکاتب فکر کی۔ ان میں جو آگے نمبرنگ دی گئی ہے ان 4 کے بعد، اس میں 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 10ویں ان نمبروں تک ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن جو نام ملتے ہیں وہ ہے جناب سعد بن ابی وقاص، جناب بلال حبشی، جناب طلحہ، جناب زبیر، جناب عثمان بن عفان، جناب عفیف کندی، جناب سعید بن زید اور دیگر افراد۔ یہ ایک لسٹ بڑھتے بڑھتے 40 تک تقریباً مل جاتی ہے کتب تاریخ میں اور کتب سیرت میں۔ کسی جگہ 40 ہیں، 35 ہیں، 30 ہیں، 25 ہیں، 15، 20۔ خواتین میں کہا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ محترمہ ام فضل نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما بنت ابو بکر کا اسلام ہے۔ اس کے بعد اسما بنت امیس کا اسلام ہے۔ اس کے بعد
जनाब फरूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन जनाब फातिमा बिनते खत्ताब का इस्लाम है। इसके बाद जनाब अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा सुमैया का इस्लाम। ये खवातीन में इन खवातीन के नाम कसरत के साथ मिलते हैं। ये तो मैंने वो तरतीब, वो लिस्ट, वो नंबरिंग आप लोगों के सामने रख दी जो आज तक चली आ रही है, ज़बाने खासो आम पर है। मेरी गुफ्तगू आज क्या है, मेरा सवाल क्या है, मेरे लिए लम्हा फिक्रिया क्या है, वो ये है कि रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में से, उनकी फैमिली में से, उनके खानदान में से 4 अजीम शान खवातीन जिनका नाम कम अज कम मुझे किसी सीरत और तारीख की किताब में, उलमा और फुकहा की गुफ्तगू में नहीं मिला कि ये खवातीन भी इब्तदाई 4, 5, 10, 15, 20, 25 मुसलमानों में उनका नाम बाई नेम मुझे उनका कहीं पर जिक्र नहीं मिला। 3 बच्चियां, रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां, जनाब ज़ैनब, जनाब रुकैया, जनाब उम्मे कलसूम। तारीखदान सीरत निगार इस बात पर मुत्तफिक है कि बवक्ते बेइज्जत जनाब ज़ैनब कमोबेश 10 साल की है, जनाब रुकैया 7 साल की है और जनाब उम्मे कलसूम 3, 3.5, 4 साल की है। चूंकि मेरा आज का यह सवाल तमाम मकातब फिक्र करने के लिए है, इसमें शिया हजरात, शिया भाई भी इसमें मैं उनसे भी यह सवाल कर रहा हूं, गो के अहले तशरीह हजरात में इन बच्चियों के बारे में मौकफ और है। उनके यहां 2 मौकफ पाए जाते हैं। पहला मौकफ यह है कि ये जो 3 बच्चियां हैं, जनाब ज़ैनब, जनाब रुकैया, जनाब उम्मे कलसूम, ये रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटियां नहीं, बल्कि पहले मौकफ के मुताबिक ये सैयदा खदीजतुल कुबरा के पिछले शोरों में से हैं और जनाब सैयदा खदीजा के साथ आई। एक मौकफ है ये। दूसरा मौकफ यह है कि ये 3 बच्चियां सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहन है, खाला। ये उनकी बेटियां हैं, यानी कि सैयदा खदीजा की भांजियां हैं, लेकिन ये जेरे परवरिश थी जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा के। मैं एक लम्हे के लिए अहले तशरीह हजरात की ये बात तस्लीम कर लेता हूं। यहां पर मैं अपना अकीदा वाज़ेह कर दूं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा है कि ये तीनों बच्चियां जनाब रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटियां हैं, बीबी खदीजा के बतन से। अच्छा, एक लम्हे के लिए शिया हजरात की बात मान ली जाए, तब भी कम अज कम वो इन 3 बच्चियों का वजूद तो तस्लीम कर रहे हैं कि ये रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हैं, चाहे किसी सूरत में हैं, चाहे भांजियां हैं, चाहे बीबी खदीजा के पिछले शोरों में से हैं, या रिसालत मौला की बेटियां हैं। ये तीनों बच्चियां बवक्ते बेइज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का हिस्सा हैं। सवाल सीरत निगारों से, तारीखदानों से, उलमा से, फुकहा से, मुझे कोई ऐसी गुफ्तगू अनायत कर दीजिए, ऐसी किताब दिखा दीजिए जिनमें इन 3 बच्चियों का नाम है। अगर बाजार देखा जाए तो अगर जो पहले 4 मुसलमान हैं उनकी जो दलील और बुनियाद है कि रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो करीब तर हैं, घर के मेंबर हैं, बीबी खदीजा, ज़ैद बिन हारिसा, मौला अली और अबू बकर सदीक बेस्ट फ्रेंड, इसलिए वो फौरन इस्लाम ले आए और वो पहले 4 मुसलमान हैं। तो जनाब आला ये जो 3 बच्चियां हैं, ये 3 बच्चियां घर में शुमार नहीं होती, रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। खुदा के लिए इनको भी कोई नंबरिंग दे दीजिए उस लिस्ट में, इनको भी कोई नंबर दे दीजिए इन 3 बच्चियों को। गो के ज़ाहरन मेरा मुतालिया बहुत कम है। मैंने अपने तौरफी वीडियो में कहा था कि मैं वो बात करूंगा
जिस किताब का हवाला मेरे पास मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुतुब के नाम ले सकता हूं, मैं उलमा के नाम ले सकता हूं, लेकिन मुझे अपने लेक्चर को कम वक्त में समेटना होता है। हां, आज इस वीडियो के जरिए एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये सवाल रख रहा हूं उलमा के लिए, फुकहा के लिए, कि इस वीडियो के नीचे बजरिया कमेंट्स कम से कम मुझे वो कुछ हवाला जात दे दीजिए, उन कुतुब के नाम दे दीजिए कि जिनमें इन 3 बच्चियों का नाम इब्तदाई मुसलमान जो टॉप हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, उनमें मुझे इनका नाम मजकूर दिखा दें। दूसरी बात, ऐसा ना हो कि आप 1000 या 2000 या 4000 किताबों में से 1 या 2 किताबें दिखा दें। यह नाइंसाफी है, यह ज्यादती है कि बाकी जो सब लोग हैं, बाकी वो 4 और जो दीगर मैंने नाम लिए हैं अपने आज इस रिकॉर्डिंग में, जो बाकी नाम लिए हैं, उन सब के नाम तो 1000 की 1000 किताबों में मिले। अगर 10,000 किताबें हैं तो 10,000 किताबों में ये नंबरिंग मिले आपको, 40 तक, 35 तक, 30 तक। और इन 3 बेटियों की, इन 3 बच्चियों का जो नाम है, वो अगर आप 1000 किताबों में से मुझे एक किताब दिखा दें तो वो नाइंसाफी है, मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। अव्वल तो मुझे उम्मीद है मैंने कम से कम कहीं उनका नाम नहीं पढ़ा। इसके बाद एक और अजीमुशान औरत जनाब सैयदा उम्मे ऐमन, मुझे उस खातून का नाम भी इब्तदाई मुसलमानों की लिस्ट में दे दीजिए। ज़ैद बिन हारिसा तो इस्लाम कबूल कर गए कि घर में आजाद करदा गुलाम है, घर में है, तो जनाब उम्मे ऐमन कहां है? बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो उम्मे ऐमन की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोबत तो अल्लुक बाकी तमाम मुसलमानों से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि जनाब उम्मे ऐमन तो रसूल माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से पहले से इस फैमिली का हिस्सा हैं। आपकी विलादत से लेकर वसाल तक वो आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, वो आपके वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला की कनीज हैं। बल्कि अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं तो जनाब मन उम्मे ऐमन, उनका तो उठना बैठना, खाना पीना, जीना मरना, अड़ोना बिछोना, किबला काबा, दीन ईमान ठिकाना, सब कुछ रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। वो कहां पे हैं? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में यह पैगाम दिया है तौहीद का, या अपने अड़ोस पड़ोस में दिया है, अपने करीबी लोगों को दिया, तो उम्मे ऐमन इस लिस्ट में मुझे कहीं नहीं मिल रही। क्या जब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार नबुव्वत फरमाया, तौहीद की दावत दी घर में या बाहर, तो उम्मे ऐमन मक्का से बाहर चली गई हैं, मदीना चली गई हैं, ताइफ चली गई हैं, खुबर चली गई हैं, फारस चली गई हैं, शाम चली गई है। उम्मे ऐमन भी ज़ैद बिन हारिसा की तरह, मौलाए अली की तरह उसी घर में मौजूद हैं। उनका नाम इब्तदाई मुसलमानों की फहरिस्त में क्यों नहीं दिया गया? ये परसों मेरे जो दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथ रिकॉर्डिंग टीम वाले होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप अपने लेक्चर्स में उम्मे ऐमन का जिक्र क्यों करते हैं? मैं कहता हूं मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। उनका जो मुकाम, उनकी शख्सियत का कद काठ इतना ज्यादा है कि कुछ कहा ही नहीं गया। हां, अलबत्ता मैं तन्हाई में यह जरूर सोचता हूं, रोज़े महशर होगा, हिसाब किताब का वक्त होगा, मैं सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा गुनाहगार शख्स हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक यकीन कामिल जरूर है कि जब मेरे हिसाब किताब की बारी आएगी तो मुमकिन है उम्मे ऐमन खड़ी हो जाएं और बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारिश करें कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी भी बख्शिश का सामान कीजिए, इसकी भी सिफारिश कीजिए। ये आपकी मुंह बोली मां उम्मे ऐमन का बहुत तज़किरा करता था, मैं तो अपनी बख्शिश के चक्कर में हूं। आज कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं, उलमा से, फुकहा से रहनुमाई चाहिए ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।